D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव हॉस्पिटल में। ओपीडी के बाहर ये देखिए तमाम जो डॉक्टर हैं, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से ये लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं और हड़ताल ये देखिए नारेबाजी की जा रही है कि हमें न्याय चाहिए। हमारा मन नहीं करता है कि हम नारे लगाएं और क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि नारेबाजी करने के लिए। मजबूर होकर इन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। पहले ये 2 घंटे की हड़ताल पर बैठते थे, लेकिन आज पूरी तरह से जो है ओपीडी सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और आज ऑपरेशन थिएटर भी चलने नहीं दिए गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर, उनसे डॉक्टर मधु हैं, उनसे बात करते हैं। तुसी आज हड़ताल पे क्यों बैठे हो? मेरा नाम डॉक्टर मधु है ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮਧੁਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰਵਰਕ ਤੇ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 100% ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 90-100 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਨੀਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨੀਟ ਦਾ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵੋच्च ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਬਰਡਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਏ ਇੰਪਲੋਇੰਗ ਥੋੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨੌਨ PGJRs ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕਲੋਡ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਰਕਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? 90 ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ PG ਹਰ ਸਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਵਧਿਆ? 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵੀ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰਸ ਘੱਟ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆਪਾਂ 2 ਵੇਵਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਚਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਕਟਿਕ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕ ਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਵੇਵਸ ਸਾਡੇ ਬੈਚਸ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ OPD OT ਵਰਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕਲੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਡੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ OPD 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ OPD ਟੋਟਲ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟਿਵ OT ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ 4-5 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਸਿੰਸ ਹਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆਪਾਂ ਫੋਡਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आप ये देख सकते हैं कि गुरु नानक देव हॉस्पिटल की OPD के बाहर ये डॉक्टर बैठे हुए हैं और OPD को बंद कर दिया गया है, मरीजों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जिस कारण मरीज भी खासे परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ और भी डॉक्टर हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश है। मैं आई डिपार्टमेंट में से फर्स्ट ईयर हूँ अभी, और सेकंड ईयर तो हम बन ही नहीं पाए, हमारे जूनियर ही नहीं आए हैं बिल्कुल भी। तो अभी ऐसे है कि फ़र्स्ट ईयर ही चल रहा है हमारा और हम मजाक मजाक में अपने आप को 1.5 भी बोल लेते हैं क्योंकि हमारे जूनियर्स तो आए नहीं हैं। तो अभी कैसे हो रहा है कि फ़र्स्ट ईयर का काम भी कर रहा है, सेकंड ईयर का काम भी कर रहा है। आप देख सकते हो कि फ़र्स्ट ईयर का काम हम इतना ज़्यादा होता है, वर्कलोड होता है कि पेशेंट्स को प्रिपेयर भी करना है, ठीक है, उसके बाद OT में लेके जाना है पेशेंट्स को। OPD में जो साइड के काम होते हैं वो भी पेरिफेरी के काम वो भी फ़र्स्ट ईयर को ही करने पड़ते हैं। तो अब क्या होता था, हमारे जो सीनियर्स थे उनको तो हम मिल गए थे तो हमने शुरू कर दिया काम, और प्लस बीच में कोविड भी आ गया
अब उसके कारण क्या है, पहले ओपीडी बहुत कम थी, अब एकदम से रश एक बढ़ गया है कोविड के बाद, और क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी कम हो गई है। हम अपना 100% नहीं दे सकते, और ओपीडी में इतना ज़्यादा रश है कि मैनेज हो ही नहीं पा रहा है। एक मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ कि मेंटल स्ट्रेस जेआरस पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि लीव नहीं मिल रही टाइम पे, क्योंकि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स कम है। अगर नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स कम है तो उतना ही वर्कलोड जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। अगर 1-2 जेआरस को छुट्टी भी लेनी हो, अगर किसी की फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम है तो भी सोचना पड़ता है कि एचओडी से कैसे जाके पूछें। तो आपको लगता नहीं, देखिए पेशेंट्स का भी काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर तो गरीब लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, आप हड़ताल पर बैठ गए हैं तो उनका भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ। ये क्या है कि हमें मिल के काम करना होता है। अगर पेशेंट्स का नुकसान हो रहा है तो डॉक्टर्स के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को। सिर्फ आपकी बेसिकली स्ट्राइक और भी अग्रेसिव हो सकती है अगर मान लीजिए जो भी आप मांगे मान रहे हैं, आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी स्ट्राइक और एग्रेसिव होगी अगर सरकार हमारी मांगे, और सुप्रीम कोर्ट खासकर इस पे जल्द से जल्द कोई डिसीज़न नहीं देते हैं तो हम अपनी जो अभी तो इलेक्टिव सर्विसेज बंद हैं, बाकी हम नेशनल लेवल पे डिसाइड कर रहे हैं। हमारी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, तो उसके मुताबिक जो भी हमारा डिसीज़न आएगा फाइनल, हम उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे और अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे। आपको नहीं लगता, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता आपको कुछ और रास्ता अपनाना चाहिए था जिससे आपका भी सोल्यूशन जो प्रॉब्लम आ रही हल हो जाता और जो मरीज हैं उन्हें भी परेशानी ना होती? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं आया कि डॉक्टर स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है। डॉक्टर स्ट्राइक अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अभी नर्सिंग स्टाफ ने भी रिसेंटली स्ट्राइक की थी, तो अपना हक तो ऐसे ही लेना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करनी ही पड़ती है ना, और क्या कर सकता है बंदा। आपको क्या लगता है कि सरकारें सो रही हैं जब तक आप लोग नारेबाजी नहीं करते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, सुनवाई नहीं होती किसी की भी? आपके सामने है, अभी 6 जनवरी की नेक्स्ट डेट दे दी है, ये बैच पहले ही 6-7 महीने लेट है, ठीक है। और ओपीडी में हम लोग बिल्कुल बैठ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास सीखने का टाइम नहीं है, और हमारे 3 साल ऐसे ही पूरे हो जाएंगे और हम ऐसे साइड वाले काम करते रह जाएंगे। हमारे कितना मानसिक तनाव है, दबाव में आप काम करते हैं आप लोग? बिल्कुल दबाव है। आप ये समझिए कि जैसे मैं आई डिपार्टमेंट से हूँ, मैं वही बता सकता हूँ। एक यूनिट में जहाँ पे 9 जन काम करते हैं, वहाँ पे अब सिर्फ 6 जन रह गए हैं, और उनमें से जो नीचे वाले 3 हैं, फर्स्ट ईयर हैं, ठीक है, उनको पहले साइड में टेस्ट भी करने हैं पेशेंट्स के, फिर उनको ओपीडी में देखना भी है, फिर कंसल्टेंट्स को बताना भी है कि क्या है पेशेंट को, उसके बाद जाके कहीं पे एडमिट होता है। और फिर अब पोस्ट कोविड एरा में एकदम से इतना रश ज़्यादा हो गया है कि हर ओटी में नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ गए हैं, तो प्रेपरेशन में भी जो टाइम लगता है वो भी ज़्यादा हो गया है, और हम शाम को इवनिंग में भी और भी ज़्यादा लेट फ्री हो रहे हैं। तो देखिए, आप मेन गेट बंद है, आपको नहीं, आप स्ट्राइक करें, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन आप मेन गेट बंद कर रहे हैं, इससे आपको लगता है कि मरीज़ ज़्यादा परेशान होते हैं? देखिए, मरीज़ परेशान हो रहे हैं, हमारी भी परेशानी है साथ में, और हम किसी को ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब से ना मिले, हम कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी सर्विसेज में दिखाइए। ओपीडी सर्विसेज, इलेक्टिव सर्विसेज सिर्फ बंद हैं, और इमरजेंसी सर्विसेज कोई नहीं बंद कर रहा अभी। लेकिन वही है कि हम सिर्फ यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप टाइमली इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालें, ताकि हम अपनी जो सेवा है वो करते रहें। और इमरजेंसी सर्विसेज अभी हमने बंद नहीं की है, बिल्कुल भी बंद नहीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रणीत है, मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट का रेसिडेंट हूँ। क्या देखिए, जैसे उन्होंने बताया स्ट्राइक पर हैं, पिछले आपकी बात नहीं सुनी जा रही, या सरकार आपको लगता है कि आपका केस ठीक तरह से ऊपर नहीं रख रही है, तो क्या कहते हैं आप? तो सरकार से डिमांड हमारी पिछले 7 दिनों से 7 दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, रोज़ हमारी स्ट्राइक चल रही है, पर सरकार का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है। जो हमारी डिमांड्स है हमने सरकार को पहले ही बता चुके हैं, अभी दोबारा बता रहे हैं कि काउंसलिंग जल्दी फास्ट ट्रैक की जाए। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये हमारी ये डिमांड है कि जो लिस्ट आनी है, काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, वो जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि वो अगर स्टार्ट आज होती है तो उसको आने में, ख़त्म होने में 2-2.5 महीने लग जाने हैं। तो ये 2-2.5 महीने फिर भी हमको ही काम करना पड़ रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड है कि जो नॉन एकेडमिक जेआर होते हैं, जो MBBS पास आउट ग्रेजुएट्स होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट हर डिपार्टमेंट में की जाए। जैसे अब देखिए, ओमिक्रॉन आ रहा है, 2 पेशेंट कल मिले हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर और भी वर्कलोड बढ़ जाएगा आपके? आपको पता ही है सेकेंड वेव कैसी थी, आप सबने देखा था। अब थर्ड वेव आने वाली है, उसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम प्रिपेयर कैसे होंगे? हम लोग कितना अपना देंगे? फर्स्ट वेव सेकेंड हम सब ने काम कर लिया है, इसके बाद नया वेरिएंट आना है, उसका पता नहीं ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है, कितना सीवियर है। जब तक नए डॉक्टर नहीं आ पाएंगे तब तक हम अपना 100% कैसे दे पाएंगे? हम
हम नहीं चाहते कि पेशेंट सफ़र हो, पर हमारे बारे में तो कोई सोचे। हम पेशेंट को अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर सरकार हमारे बारे में कुछ करे तो ना। ये देखिए, इनका डॉक्टर का ये बिल्कुल कहना बिल्कुल ठीक है कि हम मरीजों का नुकसान तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी बात सुनी जानी चाहिए। सरकार हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक तरीके से नहीं रख रही है। हालांकि अभी इन लोगों की ओर से जो मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग के मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं की गई है। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये अपना एजिटेशन आंदोलन जो है वो और भी तेज कर सकते हैं, जिससे मरीजों को खासी परेशानी होने का अंदेशा है। अगर यूं ही चलता रहा, आप देख सकते हैं कि मेन गेट बंद है, मरीज खासे परेशान हैं और सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांगों को हल करना चाहिए और इस स्ट्राइक को खत्म करवाना चाहिए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।